Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड डिलीवर 10-minute oral scientific presentation. Let's start with the content that we're going to follow. With the basic components of the scientific presentation include the title, background, methods, results and discussion, acknowledgements, question and answers session. Total slides should be around based on your research extension. I mean how much you have worked on this. For the title side, it's the total time that you have to give to this slide is 10 to 15 seconds. The title should include subject, location, time period where you've done the research, how much time you have done for the research. I mean you have done the research from 2016 to 18 or 19, so whatever this duration of this research. Then subject means on what subject you have done the research. I mean it's on dairy sciences, microbiological sciences, it's on meat technology, it's on value addition, it's on quality and safety management, whatever is the subject of your research. Your name, your affiliation, appropriate logos, say good morning, afternoon to your audience as well. This is some of the links that you can follow for some extensive study as well other than this presentation. So for the background, it took around 1 to 2 minutes to give the idea to the audience that what you are going to tell them, what previously have been done on this topic. It's usually have few slides. You have to engage audience by giving them some background, set stage for outbreak investigations. I mean give them some examples that where this problem has previously been reported or what the measures have been taken to investigate and then troubleshoot that problem. Provide rationale for planned study, essential information about the subject, establish relevance to the health, include a slide covering study objectives. What are the subject objectives? I mean why you are going to take this study, what are the main objectives of this study, why you want to perform, what are the benefits going to be from the results of this research to the public and the masses and the overall to the nation. Then the methods or methodology slide, which will take around 1 to 2 minutes. This is the roadmap that will describe that how much time you have to give to the you have to give your methodology. Usually a few slides describe study design, what study design you are going to follow, what will be the your methodology, आपका किस तरीके से आप उसको प्रोसेस करेंगे, आपका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, आपकी स्टडी पॉपुलेशन क्या है, आपका स्टडी ग्रुप्स कितने हैं, आपकी ट्रीटमेंट्स कितनी हैं, आपके कंट्रोल ग्रुप्स कितने हैं, आपके ट्रीटमेंट ग्रुप्स कितने हैं, आपकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग किस किस्म की होगी, आप इन वाइवो टेस्टिंग करें, इन विट्रो टेस्टिंग करें, बायोकेमिकल टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, इस सब की सब चीज़ें जो है आप उसमें एक्सप्रेस करेंगे मेथोडोलॉजी में. देन रिजल्ट्स का जो है पोर्शन है वो 3 to 4 मिनट्स का होगा. उसमें आप फॉर द प्रेजेंटेशन उसमें आप यूजली सेवरल स्लाइड्स हो सकती हैं क्योंकि रिजल्ट्स जो है आपकी एक एक्सटेंसिव पोर्शन होता है जिसमें आप सारा कुछ डिटेल्स बताते हैं कि भी हमने क्या क्या किया और किस जगह से हमने जो है इसके रिजल्ट्स लिए, उसके हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को, हमने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, उनको टेबल्स कैसे बनाने हैं, हमने फिगर्स कैसे बनानी है, हमने उसका विजुअल इम्पैक्ट कैसे देना है इमेजेस का, फ़ोटोज़ को या उसका आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको. फिर आपने रिजल्ट्स के बारे में बताना है कि जी आपने इस पर स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन कौन सा लगाया है, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के बाद उसमें एनोवा टेबल्स कितने आए हैं, उसमें मीन टेबल्स कितने आए हैं, उसमें आपकी जो है इसी तरह से आप ये भी उसमें बताएंगे कि आपने जितनी मेथडोलॉजी को फॉलो करके सैम्पल साइजेस जो थे उसके बाद जितना आपका रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं उसको वो आप शेयर करेंगे उनसे. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स को आप बताते होते हैं. इसमें आप स्टडी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताते हैं, एनिमल कोहॉर्ट के बारे में बताते हैं. अगर आपने इन वाइवर स्टडी की हुई है तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सी मॉडलिंग यूज़ हुई, रैट मॉडलिंग यूज़ हुई है, इसमें रैबिट मॉडलिंग यूज़ हुई है, इसमें आप किसी ह्यूमन ट्रायल्स यूज़ हुए आप बताएंगे. डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स बताएंगे, उसमें एनालिटिकल रिजल्ट्स बताएंगे. उसमें आप देन यूज़ मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट टेबल्स फिगर्स फोटोज़ एंड अप्रोप्रिएट टू योर डाटा. आप अपने डाटा के मुताबिक बताएंगे कि आपने उसमें टेबल्स देने हैं, टेक्स्ट देना है या उनका मिक्सर देना है. तो उसके बाद डिस्कशन में होगा कि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं आफ्टर फॉलोइंग द मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन योर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, आप उनको रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे. आप बताएंगे कि भी आपकी इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं. आप ये बताएंगे कि भी पहले किसने कोई काम किया हुआ था, आपकी फाइंडिंग्स जो है उससे कितनी वेरी करी हैं, उससे रेलिवेंट हैं या बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं या किसी ऑलरेडी स्टडी कन्फर्म करें या उसको डिफाई कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स होगी. डोंट रिपीट रिजल्ट्स, प्रायोरिटाइज फाइंडिंग्स फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट, लिंक फाइंडिंग्स टू स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, पुट फाइंडिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद प्रीवियस स्टडीज. लिमिटेशन स्लाइड्स होंगी, कंक्लूजन स्लाइड्स होंगी, रिकमेंडेशन स्लाइड्स होंगी इसमें आपकी जो फ्यूचर डायरेक्शन सेट करती हैं.
देन एक्नॉलेजमेंट्स में अपने को आप जो कंट्रीब्यूटर को शेयर करेंगे, अपने मेंटोर्स को, अपने टीचर्स को, अपने सुपरवाइजर्स आपके लैब मेट्स जो होंगे, आपके जो लैब अटेंडेंट्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपके ये टेस्ट लगवाने में, जो आपको जिसमें इसने सपोर्ट दिया आप उसके हेल्प आउट करेंगे। तो इसमें लोगोस करेंगे जो अपने टाइटल साइड में लगाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी लोगो है, आपका डिपार्टमेंट लोगो है, और आप एंड द एंड थैंक यू कहेंगे उन्हें। देन इफेक्टिव स्लाइड्स बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, उसमें कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके भी। उसमें अनक्लटर्ड और क्लियर विजिबल स्लाइड होनी चाहिए आपकी, ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी इंफॉर्मेटिव टाइटल होने चाहिए, एम्बिगुअस टाइटल ना हो, और कैची टाइटल होने चाहिए आपके। फिर आपने इसमें कौन सी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कंट्रास्टिंग लेने हैं, और सिंपल और कंसिस्टेंट कलर स्कीम हो, हर स्लाइड में डिफरेंट कलर स्कीम नहीं होनी चाहिए। कलर ब्रांड पे लोग अगर आपके प्रेजेंटेशन कोई देख रहे हैं तो उनके लिए फ्रेंडली प्रेजेंटेशन हो। आई मीन RGB कलर्स जो है, रेड ग्रीन ब्लू जो है, वो उसका बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन ना हो। आप उसमें डिफरेंट कलर लेके आने हैं, बैकग्राउंड आपने कैसा लेके आना है, फ्रंट पे आपकी जो राइटिंग है वो किस किस्म की हो, वो सारी डिटेल्स हमने इसमें शेयर की हुई, आप ये पढ़ के देख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर इसी तरह से ये भी आप बुलेट्स पॉइंट्स और टाइटल में कितने बुलेट होने चाहिए, मेन बुलेट कितने पॉइंट्स का होना चाहिए, सब बुलेट कितना होना चाहिए, साइज ऑफ द स्लाइड क्या होनी चाहिए। देन इफेक्टिव टेक्स्ट स्लाइड्स कितनी होनी चाहिए आपकी एक लाइन में, मैक्सिमम 8 to 10 लाइन मैक्सिमम आपकी स्लाइड के अंदर होने चाहिए, और उसमें स्क्रिप्ट किस किस्म का हो, आपके बुलेट्स लगे हुए होने चाहिए, आपके बहुत लेंथी पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। आपने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे चेक करनी है, ग्रामेटिकल चेक्स क्या उसमें वो देखने हैं। अवॉइड क्या करने हैं आपने, विजुअल क्लटर, टू मेनी कलर्स नहीं लेके आने आपने, तमाम के तमाम वर्ड्स आपके कैप्स में ना हो, वो इट्स डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू स्टडी ऑन द स्लाइड्स। फिर आपके पास जो है कोई 3D टेक्सचर बहुत ज़्यादा ना हो, एनिमेशन बहुत ज़्यादा आपने लगाई हुई हो। आपके पास अगर फ़ोटोज़ लगाई हुई तो ये एक्सेसिव फ़ोटोज़ ना हो कि आपकी पूरी स्लाइड में फ़ोटो कवर हो, जिसको आप कर सकते हैं, उसको कट डाउन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। देन आप शुड सर्व एज फोटोज़ एंड क्लिप आर्ट टिप्स में आप ये कर सकते हैं कि भाई कॉपीराइट मटेरियल यूज़ ना करें विदाउट परमिशन इनडेफिनेट पीपल अनलेस रिलीज। किसी ने अगर अपना कोई एक प्री प्रिंट लगाया हुआ है तो आप उसकी कॉपी लगा के अपने फ़ोन में यूज़ करें अनलेस उसकी इजाज़त आपके पास है, ये कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ आता है। बच्चों या जानवरों की फ़ोटोज़ ऐसे ना लगाएं विदाउट परमिशन। आप ऐसी फ़ोटोज़ लगाएं जो रेलिवेंट हो और जो कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक जो कॉपीराइट को डिफाइन ना करें। दैन डिलीवरिंग एन ऑल प्रेजेंटेशन में यूज़ स्क्रिप्ट, फ्लैश आउट बुलेट्स पॉइंट्स इनटू सेंटेंस। आप अपने जो बुलेट्स पॉइंट उनको सेंटेंस के तौर पे करेंगे। बुलेट्स जो आपने प्रेजेंटेशन के अंदर लगाए हुए आपने सिर्फ हेल्प आउट किए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको एक गो थ्रू मिलता है, आपको एक कॉन्टिन्यूटी मिलती है। आप बुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। अपनी प्रेजेंटेशन को आप प्रिंट आउट करें 14 to 16 पॉइंट्स के ऊपर, और उसको बार बार पढ़ें। अपनी प्रेजेंटेशन को टाइम नोट करें, बार बार डिलीवर करके, रिहर्सल करके। उससे आपको ये आइडिया होगा भी आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितना टाइम लगाना और कितने दिन में आपको प्रेजेंट हो जाएगा। देन यू हैव डिलीवरी टिप्स में जो है वो थ्रू करने के लिए गेट देयर अर्ली, जहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पहले जाएँ। डोंट स्टार्ट स्पीकिंग अंटिल रेडी, जब तक आप रेडी ना हो मत बोलिए। स्लो बोलें और एक स्पेसिफिक और सफिशेंट टोन के साथ बोलें। अपनी बैक कभी भी ऑडियंस की तरफ ना करें। अपनी स्लाइड्स को चेक करें कि प्रोजेक्टर के ऊपर ऑन करके कहीं कोई आउट ऑफ द प्रोजेक्टर तो नहीं जा रही। माइक्रोफोन करेक्टली यूज़ करें। आप अपने ह्यूमर के बारे में बहुत ज़्यादा फोर हैं, अनड्यू ह्यूमर जो है वो आप स्पॉइल कर देते प्रेजेंटेशन को। चार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ग्राफ्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स में नहीं होती तो ग्राफ्स जो है वो वेल इन्फॉर्म होते हैं। अपनी एसोसिएशंस को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप किसी सोसाइटी का हिस्सा है, किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें, वो मेंशन करें। किसी भी नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आप पॉज करें ताकि लोगों को पता लगे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं। लेज़र पॉइंटर किस तरह से आपने यूज़ करना है। हैव टू टर्न अवे फ्रॉम ऑडियंस टू यूज़ इट। ठीक है, आपको ऑडियंस की तरफ लेज़र पॉइंटर कभी भी नहीं करना, आपने उसको हमेशा अपनी स्लाइड्स की तरफ लेके जाना। सम प्रोजेक्शन स्क्रीन अब्सॉर्ब्स द लेज़र सो ऑडियंस इन रूम कैन नॉट सी इट। आपको जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर स्क्रीन होती हैं वहाँ पर आपके पास ये लेज़र पॉइंटर्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं लाइट को। तो इसलिए आपने चेक कर लेना कि क्या है मेरा लेज़र पॉइंटर बहुत नहीं है। ब्लू लाइट भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है। कलर ब्लाइंड पीपल इसे नहीं देख सकते, कैन बिकम अ क्रच। लोगों को अक्सर ये एक डिस्ट्रैक्शन दे रही होती है कि लाइट कम मूव कर रही है। इफ़ योर हैंड्स आर शेकिंग पॉइंटर विल शो इट। अपने हैंड्स को शेक होने से बचाएं। अगर आप नर्वस हैं कि आप स्टेज से घबराते हैं तो आपको हो सकता है कि पॉइंटर हिलने की वजह से लोगों को फील हो कि आप नर्वसनेस का शिकार है। अल्टरनेटिवली बिल्डिंग पॉइंटर टू स्लाइड्स, यूज़ कंप्यूटर कर्सर्स। आप कंप्यूटर कर्सर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ को स्लाइड के ऊपर पॉइंट करने के लिए। जब आपका क्वेश्चन आंसर पीरियड एट द एंड आता है तो आपने क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने
हमेशा नोट रखना है इनमें। डोंट फंबल फॉर एक्स्ट्रा स्लाइड्स, डोंट बी डिफेंसिव इवन इफ क्वेश्चन इज हॉस्टाइल, डोंट आस्क डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन। कभी मत पूछेंगे ये जो मेरा आंसर था क्या आपके क्वेश्चन का यही आंसर बनता था। यू हैव टू गिव द आंसर। डोंट थैंक द क्वेश्चनर फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए थैंक भी मत करें। डोंट रेट द क्वेश्चन, ये भी मत कहें कि ये बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बुरा सवाल था। डोंट बैक अवे फ्रॉम द पोडियम एज इफ पॉइजन, जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको मॉडरेटर नहीं कहते कि थैंक यू वेरी मच, आपने पोडियम नहीं छोड़ना। डोंट हैंग ऑन द पोडियम एज इफ लाइफ ऑब्जर्वर, आप पोडियम या रोस्ट्रम पे ऐसे कभी ना खड़े हो कि जैसे आप पोडियम को पकड़ के खड़े हुए हैं या उसको ऊपर झुके हुए हैं, कॉन्फिडेंट होकर स्ट्रेट खड़े रहते हैं। टेक होम मैसेज क्या आपका, decide type of data and the point you want to convey, then choose the visual accordingly, text table, graph, chart, etc. आप अपना सबसे पहले आप ये नोट करें कि आपका फोकस ऑफ द स्टडी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मुताबिक ही आप डाटा इकट्ठा करें और उसको विजुअली आप शेयर करें। आप उसमें ग्राफ में करें, टेबल्स में करें और कुछ इन्फॉर्मेशन में दें। वेल ऑर्गेनाइज करें, उसको प्रैक्टिस करें, बार बार क्लियरली बताएं, इफेक्टिव स्लाइड्स होनी चाहिए, रीइंफोर्स करें अपने मैसेज को ताकि लोग उसे समझ सकें अच्छे तरीके से। गुड साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ग्लिट्स, जो साइंस है वो ग्लैमराइज साइंस नहीं है। जो अच्छी साइंस है वो ग्लैमर से अवे है, वो फैक्ट्स बेस्ड है और फैक्ट्स पे होगी। हाँ, उसको आप कन्वे करने के लिए उसमें थोड़ा सा ग्लैमराइज कर सकते हैं, उसमें आप ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, उसमें आप थोड़े से कलरफुल बना सकते हैं उसको, उसके अंदर एनिमेशंस दे सकते हैं, लेकिन नॉट एक्सेसिव, वो इस हद तक हो कि लोगों को समझ आ सके बस। Thank you very much. If you have any questions regarding this, please completely read the presentation and afterwards we can have a online class session जिसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन शेयर हुई। Thank you very much for attention.